is ready. So like yesterday we have Australia. Okay, so we know that in the previous two chapters, I mean two classes, I taught you about South America, right? South America, both physical and political maps. So so there are so many things in South America that still have not been completed, but today I will not take South America because before before I mean doing about South America, I have also to complete so many things in South America: rivers, then mountains, peaks, bays, lagoons, everything. So we will take it later when we will start with South America again, as it was already completed. We will start anew, okay? So that it will be a division for you. But those who are watching the videos or who will watch the videos, for them it will be easier, because if I start now South America, we will miss so many things because two of you or one of you was not present in the next day. I think I did about South America. Yes, sir. So today I'll take Australia. Okay. So just remember with me. Okay. This is the map of Australia. Okay. So in Australia we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. See, this is the continent of Australia. The continent of Australia comprises of two countries. Okay, one is the Australia itself, and the another is New Zealand. This is New Zealand. Okay, and this is Australia. Understand? So now what can we say, that between New Zealand and Australia there is a sea. There is a sea which we call Tasman Sea. So Tasman Sea, you can see Tasman Sea is located between New Zealand and Australia. Understand? So now let me clear out everything. This is a continent of Australia. The continent of, see, what is continent? In a continent there are many countries, like we learned about South America. In South America we had many countries like Brazil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. So in the same way, in the continent of Australia we have two countries. One is New Zealand. This is New Zealand, the whole, and this is Australia. In Australia we have 6 states if we divide it. Okay, so what are they? Let's remember directly. Okay, directly remember, याद करते हैं. ये है क्वींसलैंड. ये क्या है? क्वींसलैंड है. ये क्या है? विक्टोरिया. ये न्यू साउथ वेल्स है. ये क्या है? न्यू साउथ वेल्स. ये विक्टोरिया. याद रहेगा, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, फिर नॉर्दर्न टेरिटरी, फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया. ये नॉर्थ में है नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, ठीक है, और वेस्ट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. सो सबसे बड़ा है, ओके, द मोस्ट लार्जेस्ट इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. ओके, नाउ लेट्स रिमेंबर अगेन. क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, देन विक्टोरिया. क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया. इतना क्लियर है. फिर नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया. नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. फिर एक बार ऐसे देखते हैं, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया. यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, फिर क्या है? न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया. ये 6 हो गया. क्लियर एकदम. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न साइड में है. नॉर्दर्न टेरिटरी इज इन द नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ओके, एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया साउथ में है. क्वींसलैंड ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, एंड साउथ ईस्ट में क्या है? न्यू साउथ वेल्स है और विक्टोरिया है. और हमें याद रखना है, विक्टोरिया सबसे छोटा स्टेट है. ठीक है, सबसे छोटा स्टेट है. अभी देखेंगे पूरा ये ऑस्ट्रेलिया है, इसका कैपिटल क्या है? कैनबेरा है. ये जो दिया है ये कैपिटल है, कैपिटल का साइन दिया है यहाँ पे. ठीक है,
ये साइन कैपिटल का है, बस दिया है। और ये जो छोटा छोटा है ये सिटी है इम्पोर्टेंट, जैसे कि सिडनी हो गया, सिडनी का नाम सुना है, सिडनी एक इम्पोर्टेंट सिटी है, पोर्ट सिटी है, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। तो सिडनी कौन सी स्टेट में है, न्यू साउथ वेल्स में है ना। फिर तुम्हारा यहाँ पे विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया के यहाँ पे है मेलबोर्न, क्या है, मेलबोर्न। मेलबोर्न एक बहुत बड़ा, वेरी लार्ज एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मेलबोर्न, मेलबोर्न कहाँ है, विक्टोरिया में है। और सिडनी कहाँ है, न्यू साउथ वेल्स में। तो अभी देखेंगे, इफ वी सी you can notice that the tropic of Capricorn directly passes through the middle of Australia, लगभग मिडिल में है ना। तो मिडिल में से गया है तो तीनों स्टेट से इट पासेस थ्रू 3 स्टेट्स। क्वींसलैंड, बस ऊपर वाला याद रखेंगे, ऊपर में क्वींसलैंड है, यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी है और यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इट पासेस थ्रू 3 स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया व्हिच आर क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो याद रहेगा। अभी 6 स्टेट का कहाँ कहाँ है याद है पूरा। विक्टोरिया कहाँ पे याद है, ठीक है। विक्टोरिया में एक इम्पॉर्टेंट सिटी का नाम मेलबोर्न है ना। और सिडनी न्यू साउथ वेल्स का है ना, ठीक है, गुड। तो अभी देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस हुआ है 3 स्टेट्स के ऊपर से, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी एंड क्वींसलैंड, ठीक है। तो और एक चीज़ बता देते हैं, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जैसे मिडिल से पास हुआ है, इन द सेम वे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, है या नहीं। तो इससे क्या मतलब क्लियर है कि जो क्लाइमेट होगा ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में मोर और लेस सेम ही होगा, मोर और लेस। हम लोग इक्वल एकदम पूरा सेम नहीं होगा, लेकिन मोर और लेस थोड़ा बहुत होगा, है ना। और जो हमारा जो मानसून की नाम सुना है, मानसून क्लाइमेट, जो मानसून का रेन इंडिया में आता है, यू नो द रेनफॉल, मानसून रेन कम्स इन इंडिया, so there is a system behind the monsoon, okay. When in India, very carefully listen to me, in India, for example, this is India, okay, this is India and Tropic of Cancer, है ना। तो यहाँ पे इक्वेटर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इक्वेटर खींच लेते हैं, so you know down the equator we have Australia. So you know in the monsoon system, let's just explain in 2 to 3 minutes this system, okay. In the summer season, when in the northern hemisphere it is summer season, the sun directly heat over northern India, so northern India became hot and it received the maximum solar इंसोलेशन, है ना, सोलर इंसोलेशन। नाउ ज़्यादा यहाँ धूप होगा तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा, here will be the क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर, और ऑन दैट टाइम here is हाई प्रेशर, yes or no. So now the air going around this will start moving this side, yes or not, okay, this side. After crossing equator they will change their direction, not always, they will go in the, they will deflect to the right direction after crossing equator. As per the Coriolis force in the northern hemisphere, when any moving objects move, it reflects or it deflects its direction towards the right, okay. ये थोड़ा राइट साइड में मुड़ जाता है, ठीक है, इसीलिए ना ये ऐसे जाने लगता है, okay. And while you know just coming over the sea, it will carry with it, the wind will carry with it a lot of moisture,
and that moisture actually causes rainfall in India. This is the same system in monsoon. In the same way, if we reverse the thing, when the sun is here, for example, the sun is here, so Australia will be heated directly. Here will be low pressure. India on the time experience high pressure, and the season is winter season in India. So from Indian side, from this Bay of Bengal and Arabian Sea, okay, the wind will start coming towards Australia. Yes or no? Now I understand. You understand? I'll explain in detail the monsoon system. I'll explain it in detail in the later times when I'll teach about weather and climate, then local winds, periodic winds. So monsoon system is a periodic winds. Okay, and monsoon has a huge climatic effect. It has a wind has a huge effect on the Indian subcontinent, then in some parts of, most parts of Southeast Asia, then some parts of Africa. Okay, it causes rainfall. चलो ये छोड़ देते हैं, ये देखते हैं. तो अभी 6 स्टेट देखिए, क्लियर है. फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द लार्जर थिंग. जो मतलब आता है, जो सबसे बड़ा है और इम्पोर्टेंट है. तो 6 स्टेट्स देख लिया. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हैज पास्ड थ्रू द मिडिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑल्सो it passed through 3 states of Australia. Then we have seen in Queensland there is a large port city. It is called Brisbane. क्या? देखो यहाँ पे ठीक से Brisbane. यहाँ Brisbane है क्वींसलैंड के. न्यू साउथ वेल्स में सिडनी है, विक्टोरिया में मेलबोर्न है. और ना ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न साइड है, ओके, ईस्टर्न का साउथ ईस्टर्न साइड के नीचे देखो ये डेमोन में ये कौन सी है? तस्मानिया है. क्या है? तस्मानिया. इसका नाम है तस्मानिया. ठीक है. इसका कैपिटल है होबार्ट. क्या है? होबार्ट है. हाँ, होबार्ट. ये क्या है? तस्मानिया है. इसका नाम तस्मानिया है. ठीक है. तो तस्मानिया है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सिटी है, कैपिटल है. इसका नाम क्या है? होबार्ट. पूरा ध्यान से देखो, ये इम्पोर्टेंट है. ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, देखो हम मार्क कर रहे हैं. ये जो एरिया है, यहाँ इसको एक बे बोलता है. इसको बोलता है स्टॉर्म बे. स्टॉर्म मतलब क्या है? तूफान है. बे मतलब सागर है, बे है. ठीक है. तो ये कौन से बे है? स्टॉर्म बे. इसके पहले और एक चीज दिखा देते हैं. इन दी वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, we have Indian Ocean. Clear? In the northern side of Australia क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा? याद करो. देखो यहाँ पे पैसिफिक. देखो यहाँ पे ना अभी बनाया नहीं है, बाद में हम दिखाएंगे. ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा इधर जाओगे ऊपर तो यहाँ पे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, बहुत सारा यहाँ पे और आइलैंड है. ठीक है. और आइलैंड के साइड में बीच में बहुत सारा बेस है, बहुत सारा सीस है. फिर उसके ऊपर साउथ चाइना सी है. ठीक है. ईस्ट चाइना सी है. फिर उसके ऊपर और जापान है ना, बहुत ऊपर है वो हम बाद में करेंगे. तो इतना ही देखते हैं. इस साइड में ना जो ग्रेट कोरल का नाम सुना है? कोरल क्या है? तो बाद में हम पढ़ाएंगे व्हाट इज कोरल एक्चुअली. सो in the eastern side of Australia, especially in this side, we have the Great Barrier Reef. Okay, after the coral dies, the skeletons of coral actually left behind their skeletons. So over the years, that skeletons get deposited over that layer one by one. Understand? So in that way, here is a formation of Great Barrier Reef. ये कोरल बेरियर है. ठीक है. बेरियर रीफ है. कोरल का बहुत सारा टाइप से एटोल होता है कोरल का टाइप से. मान लो ये छोटा एक कोरल है. कोरल क्या है? एक एनिमल है. क्या है? एक एनिमल है. ओके. तो ना when the coral dies, जब ये मर जाता है ना कोरल,
तो इसका जो स्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया होता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो इसका स्केलेटन मान लो ये एक सागर है छोटा, ये ज़्यादा डेप्थ का नहीं है, ओवर ना 100 and 1000 ऑफ ईयर्स यहाँ पे अगर जमेगा ऐसा स्केलेटन तो ये भर जाएगा ना पूरा, और ऊपर भी आ सकते हैं। ये मान लो वाटर लेवल है, ये क्या है, मान लो ये वाटर लेवल है, तो इसके ऊपर आ गया ऐसे, तो आइलैंड बन जाएगा कि नहीं। तो इन द सेम वे क्या है यहाँ पे, कौन सी आइलैंड है यहाँ पे हमारा? अंडमान एंड निकोबार। यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ पे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड। सो वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड ना जो है ये कोरल फॉर्मेशन की वजह से हुआ है, ये कोरल आइलैंड है। लक्षद्वीप जो हमारा है ना, वहाँ पे हमें फॉरेस्ट नहीं दिखता है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं दिखता है, बट वी कैन सी फॉरेस्ट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड the formation of soil is because of the breaking down, or because of the processing of the rocks. Okay, अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो है ना, सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, this is an island of India. So this island is the extension of the Himalayas. एक्सटेंशन ऑफ दी हिमालयस, ये हिमालय के एक्सटेंशन है। हिमालय मान लो नीचे से आया है और यहाँ से ऊपर में उठ गया है, समझ में आ रहा है? तो हिमालयस का ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ का जो द सॉइल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विल बी मोर फर्टाइल, यस और नॉट? बट इन कंपैरिजन टू द सॉइल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इफ यू ऑब्जर्व द सॉइल इन लक्षद्वीप, the soil is not that fertile. So यहाँ soil नहीं fertile होगा, तो इन लोगों का यहाँ पे जो लोग होगा, इसका occupation क्या होगा? मेनली टूरिज्म होगा। मेन क्या होगा? मेन जो इकोनॉमिक फैक्टर होगा टूरिज्म होगा, फिशिंग होगा ना, लेकिन फॉरेस्ट्री नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट में अच्छा से एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मेन एक्टिविटी क्या होगा? टूरिज्म होगा, फिशिंग होगा लक्षद्वीप में, समझ में आया? तो यहाँ पे कोरल जो बेरियर है, ग्रेट बेरियर रीफ बोलता है यहाँ पे, ठीक है? तो उसी की वजह से इसका नाम दिया है कोरल सी, ठीक है? तो देखा कोरल सी कहाँ पे है? यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है कोरल सी। ओके, इफ यू सी इन द वेस्टर्न साइड वी हैव इंडियन ओशन। व्हाट ओशन वी हैव? Indian Ocean in the western side. In the eastern side we have Pacific Ocean. देखो ये Pacific Ocean है, ठीक है? यहाँ पे कोरल सी है, Pacific Ocean है, Indian Ocean है। फिर यहाँ पे कौन सी होगा? अटलांटिक कहाँ से आ गया? साउदर्न ओशन होगा, साउदर्न ओशन होगा। चलो बस हम क्लियर करने के लिए थोड़ा वर्ल्ड की मैप बांध देते, छोटा करके, ठीक है? कहाँ कौन सी ओशन होगा अभी पता चल जाएगा, ठीक है? ओके, व्हिच कॉन्टिनेंट दिस इज? अफ्रीका। अफ्रीका। तुम कुछ दूसरे बोल रहे थे क्या? इक्वेटर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया को बना लेते हैं छोटा कर देते, बड़ा हो गया। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, नाव हो गया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज न्यूजीलैंड। मान लो यहाँ पे न्यूजीलैंड है, कितना छोटा छोटा है ना, इसकी वजह से
तो अभी देखो, अभी यहाँ पे बना लेते हैं क्या, यहाँ पे अमेरिका बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर ऐसा होता है तो यहाँ ऐसा है, तो यहाँ पे बना लेते हैं। मान लो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे यूरोप है, ये क्या है, एशिया है, एशिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये सब नॉर्थ है ना। तो अभी देखो यहाँ पे है पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पैसिफिक ओशन नहीं है, देखो इसके ऊपर हम पैसिफिक ओशन बोले, यहाँ पे क्या है, which ocean or which sea there will be, which ocean there will be, there is actually, see, we say this larger area Pacific Ocean, we don't say this area is Pacific Ocean, there are many small seas, bays, है ना, फिर gulfs, okay, we have Indian Ocean, see here we have Indian Ocean in the western side, in the western side of Australia we have Indian Ocean, Pacific Ocean, है ना, okay, Southern Ocean. You know where is Southern Ocean? In the southern side, near Arctic. ये southern है ना, Southern Ocean. हम clear है? तो यहाँ पर क्या है? कोरल सी है, कोरल सी है ना, कोरल सी हो गया। और यहाँ पे देखोगे ऑस्ट्रेलिया के ना, ये जो एक सिंग जैसा है, दिस इज लाइक अ हॉर्न, ये सुनो। तो याद रखोगे हॉर्न की इन द लेफ्ट साइड ऑफ हॉर्न देयर इज अ डीप, थोड़ा डीप है, इस डीप का नाम है गाल्फ ऑफ कार्पेंटरिया। क्या है? गाल्फ ऑफ कार्पेंटरिया, याद रहेगा। दिस इज अराफुसी, दिस एरिया इज कॉल्ड अराफुसी, गाल्फ ऑफ कार्पेंटरिया, अराफुसी, टाइमोर सी है, टाइमोर लॉन्ग नहीं है, टाइमोर सी है। यू नो हु इज टाइमोर लॉन्ग? हाँ, a great, Timur Long was a great warrior, okay, Timur Long, Genghis Khan भी Timur Long भी बहुत great warrior था, okay, so ऐसा। तो ये टाइमोर से है। यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक इम्पोर्टेंट सिटी है, इसका नाम है पार्थ। क्या है? PERTH, पार्थ, ठीक है, समझ में आया। गाल्फ ऑफ स्पेंसर, यहाँ पे देखो ऐसा है, पहले ऐसे किया है, फिर थोड़ा ऐसे नीचे किया है, ऐसे ऊपर आया, फिर डाउन में किया है। तो डाउन में ना ये इसको गाल बोलते हैं, ठीक है। गाल्फ ऑफ स्पेंसर, क्या है? गाल्फ ऑफ स्पेंसर, ये एक बे है, जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, ऐसा ही है ना बे, ठीक है। अभी देखोगे क्यों बे है, देखो इंडिया का अगर ये लोकेशन याद करो, ऐसे ही तो है ना इंडिया, ठीक है। ये हम बनाते नहीं क्योंकि हमारा इंडिया का हिस्सा नहीं है कि नहीं। तो ये देखो इसको ना एक बे बोलते हैं ना, इसको बे ना, बे ऑफ बंगाल, ओके। तो ये भी बे की तरह बैठे है ना। तो ये कौन सी बे होगा? एनकाउंटर बे, एनकाउंटर कर दोगे है ना, एनकाउंटर बे है ये। कौन सी बे है? एनकाउंटर बे। और ये गाल्फ ऑफ स्पेंसर, एनकाउंटर बे की पूरा वेस्टर्न साइड में क्या है? गाल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है, उसका नाम है पार्थ। इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तस्मानिया है, ठीक है। तस्मानिया में एक इम्पोर्टेंट सिटी है, इसका नाम है होबार्ट। क्या है? होबार्ट, होबार्ट। होबार्ट के नीचे एक बे है, इस बे का नाम क्या है? स्टोम बे। नाम भी कैसा खतरनाक है, स्टोम बे, इनकाउंटर इनकाउंटर बे, स्टोम बे। अगर ऐसे याद रखोगे, इनकाउंटर करोगे तो तूफान आ जाएगा ना, झमेला होगा। तो तूफान आ गया, स्टोम बे हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जो अभी देखो ये जो न्यूजीलैंड है, ये कंट्री है, ठीक है। न्यूजीलैंड इज ए
कंट्री, हम सुनते हैं ना न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड इज कंसिस्टेड ऑफ टू इम्पोर्टेंट एंड लार्ज आइलैंड। ये है साउथ आइलैंड एंड नॉर्थ आइलैंड। देखो ये नॉर्दर्न साइड में है इसलिए नॉर्थ आइलैंड, ये साउथर्न साइड में है डायरेक्शन में ये साउथ आइलैंड। तो न्यूजीलैंड इज कंसिस्टेड ऑफ टू लार्ज islands, okay, which are South Island and North Island. So the capital of New Zealand is Wellington. The capital of New Zealand is Wellington, okay. And one important thing is Wellington is located in the Northern Island, not in the Southern Island. देखो याद रखना है, कैनबेरा ब्रेन में विजुअलाइज करना है पूरा मैप को, है ना। हमें लगता है विजुअलाइज अब तक बहुत सारा हो भी गया है। तो इफ यू विजुअलाइज यू कैन सी द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा एंड कैनबेरा इज लोकेटेड इन न्यू साउथ वेल्स, ओके। सिडनी इज लोकेटेड इन, देखो यहाँ पे सिडनी कहाँ पे, न्यू साउथ वेल्स, ओके। तुम सोचे थे कि विक्टोरिया में है, विक्टोरिया में मेलबोर्न है, ठीक है। और क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन है। क्वींसलैंड में क्या है? ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड में एक इंपॉर्टेंट सिटी ब्रिस्बेन, ऊपर कोरल सी है। यहाँ पे गाल्फ ऑफ कार्पेंटरिया, गाल्फ ऑफ कार्पेंटरिया ये नीचा है, गाल्फ ऑफ कार्पेंटरिया। ऊपर में क्या है? आराफू सी है। थोड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में थोड़ा बड़ा करके ताइमोर सी है, ठीक है। उस साइड में वेस्टर्न साइड में इंडियन ओशन है। यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी है। यहाँ पे पार्ट एक इम्पोर्टेंट सिटी है इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। देन वी हैव गाल्फ ऑफ स्पेंसर, देन एनकाउंटर बे, एनकाउंटर बे, ओके, एनकाउंटर बे। वी हैव तस्मानिया, द कैपिटल ऑफ तस्मानिया और इम्पोर्टेंट सिटी इन तस्मानिया इज होबार्ट, ओके। यहाँ पे एनकाउंटर बे है, यहाँ पे स्टॉर्म बे है। समझ में आया? नीचे साउदर्न ओशन है। देखो हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और ये साउथ आइलैंड है, ये नॉर्थ आइलैंड है। वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यू जीलैंड। सो वेलिंगटन इज लोकेटेड इन द नॉर्थ आइलैंड, ओके। अभी ना स्टेट किसको बोलते हैं? दो आइलैंड के बीच में जो वाटर बॉडी जाता है ना, छोटा करके नैरो वाटर बॉडी है ये। जब तुम्हें आइलैंड पूरा नजदीक दिख रहा है, मान लो दो आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, तो ये आइलैंड दो नजदीक है, तो लोग जब दिखेंगे तो एरिया तो बहुत बड़ा बड़ा एरिया है। These two areas are large areas. If you focus on the water, if you see from here, you will see that this water is a narrow. It looks like a river. So what does it mean? This water body, narrow water body, connects two large water bodies. Yes or no? This is water body. This is land. Now this water body is connecting two large water bodies. So this is called a strait. So न्यू आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है उसको हम बोलते हैं कुक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? कुक स्ट्रेट, ठीक है। हो गया इतना, कुक स्ट्रेट हो गया। तो अब इतना खत्म, ये सब ना। तो इतना ही आज हम देखेंगे और एक बार हम 1 मिनट के अंदर क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट there are 6 states in Australia. One is Queensland, New South Wales, Victoria, Northern Territory, South Australia, Western Australia, okay. The Tropic of Capricorn passes through middle of the Australia. It also passes through 3 states in Australia, which are Queensland, Northern Territory and Western, not Southern, Western Australia, okay. Now you will see that in the northeastern side there is Coral Sea. Here the Gulf of Carpentaria, Gulf of Arafu Sea, then Timor Sea, then यहाँ पे क्या है? Indian Ocean है। यहाँ पे क्या है? Western Australia में एक important city Perth है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? Gulf of Spencer, Gulf of Spencer के थोड़ा राइट साइड में एनकाउंटर बे और तास्मानिया के नीचे स्टॉर्म बे, ठीक है। स्टॉर्म बे के थोड़ा ऊपर तास्मानिया की इंपॉर्टेंट सिटी और कैपिटल क्या है? हॉबार्ट, ठीक है।
ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला हिस्सा साउदर्न ऑस्ट्रेलिया. New Zealand is consisted of two large and big islands, which are South Island and North Island. Wellington is the capital of New Zealand, which is located in North Island. Okay, North Island. देखो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच इन द मिडिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड देयर इज अ सी, दैट इज Tasman Sea. What does it mean? Tasman Sea, okay, is in the middle of Australia and New Zealand. Okay, मतलब Tasman Sea ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सेपरेट करते हैं. If I say which sea separates ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, it will be Tasman Sea. Okay, ब्रिस्बेन एक इम्पोर्टेंट सिटी है क्वींसलैंड का. न्यू साउथ वेल्स में क्या है? सिडनी एक इम्पोर्टेंट सिटी है. ऑल्सो द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा, व्हिच इज लोकेटेड इन न्यू साउथ वेल्स. इन विक्टोरिया देयर इज अ इम्पोर्टेंट सिटी, इट इज मेलबोर्न. क्या है? मेलबोर्न. और यहाँ पे ईस्टर्न साइड में क्या है? पैसिफिक ओशन है. और यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में. तो ये मैप को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये वर्ल्ड मैप के हिसाब से ऐसे अगर देखेंगे, ठीक है, तो अभी दिख रहा है यहाँ पे लग रहा है इंडियन ओशन बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं है, ये सबसे बड़ा है पैसिफिक ना. पैसिफिक के बाद ये अटलांटिक बहुत बड़ा है ना, फिर इंडिया है ना, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया. नाउ यू कैन पॉइंट आउट ऑस्ट्रेलिया को पॉइंट आउट कर सकते हो कहाँ क्या है ऑस्ट्रेलिया का. और हम दूर से जब देखते हैं छोटा है ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं है. देखो कितना सारा चीज़ है ऑस्ट्रेलिया में. एम आई क्लियर? नाउ आई गिव यू 5 minutes, okay, to draw the map of Australia and New Zealand and all the seas and bays, the strait, oceans, okay, all this you have to draw in 5 minutes by watching this map, okay. और ये देख लो. And tomorrow we will take the physical map of Australia, and the day after tomorrow we will also revise about Australia, then important peaks, mountains, rivers, सारा चीज़ देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया का. Then we will move North America. Okay. Now I'll give you 5 minutes and just draw this within 5 minutes. Okay.